وتعالى في كلامه الحكيم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کافروں کی جب روح نکلتی ہے یا جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ کیفیت اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے مومنوں کی روح جب نکلتی ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے، دونوں کا موازنہ کیا کہ کافر کی روح کے نکلنے کے وقت حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے اور مومن کی روح نکلتے وقت حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے، دونوں کا اللہ نے موازنہ کیا ہے۔ تو یہاں کافر کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اللہ فرما رہا ہے فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ لوگ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ کون لوگ؟ کافرین لوگ، مشرکین لوگ، ظالمین لوگ۔ فرشتے جب ان کی جان، ان کی روح قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ فرما بردار بن جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ما کننا نعمل من سوء، ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، ہم شرک و کفر کچھ نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرشتے کیا کہیں گے؟ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم لوگ کر رہے تھے، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم دنیا میں شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، اللہ کو سب کا علم ہے۔ روح نکالتے وقت اسی وقت انسان کو احساس ہو جاتا، وہ پھر مسلمان بننے کی خواہش کرتا، وہ کہے گا کہ ہم دنیا میں فرما بردار بن کے رہتے تھے، اطاعت گزار بن کے رہتے تھے، اور بعض آیتوں میں آتا ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو۔ انسان کی جب روح قبض کی جاتی ہے، جب نکالی جاتی ہے، اس کو حقیقت کا علم ہو جاتا ہے کہ میں غلط پر تھا کہ صحیح پر تھا، اسی وقت معلوم ہو جاتا، دنیا ہی میں معلوم ہو جاتا آدمی۔ روح نکالنے کے وقت ہی انسان کو حقیقت کا علم ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ گمراہی پر تھا، غلط کام پر تھا، وہ حق پر نہیں تھا۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے جو تم کرتے تھے، فادخلوا ابواب جہنم، چلو اب جہنم میں داخل ہو جاؤ، چلو جہنم کے دروازوں سے اب تم لوگ داخل ہو جاؤ۔ اور وہ متکبروں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، آپ دیکھیں گے، اگر آپ دیکھیں کب؟ اس وقت جب فرشتے کافروں کی روح کو قبض کر رہے ہوتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کے سرین پر مارتے ہیں فرشتے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں، ان کے پیچھے بھی مارتے ہیں، اور اسی وقت جہنم کی بشارت دیتے ہیں، روح نکالتے ہی وقت وذوقوا عذاب الحریق، جلانے والا عذاب تم لوگ اب چکھو۔ اسی وقت دنیا ہی میں ان کو جہنم کی بشارت سنائی جاتی ہے، ان کو جہنم کی ہولناکیوں کا عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ان کو اور تکلیف ہو روح نکلنے میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب کسی کافر اور منافق کا وقت پورا ہوتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت اور آخرت میں قدم رکھنے کا جب وقت آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آسمان سے بالکل سیاہ چہرے والے، ڈراؤنی شکل والے، ایک دم کالے چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
और उनके पास एक टाट होता है, और वो टाट लेकर आके उस काफिर आदमी जिसकी रूह कब्ज करनी, उससे इतनी दूर बैठते हैं जहां तक हमारी निगाह पहुंचती है। वो हमारी निगाह अगर कोई चीज हायल ना हो तो आसमान तक पहुंचती है। तो इतनी दूर वो फरिश्ते, वो जो जहन्नम का बदबूदार टाट लेके आते हैं, एक कपड़ा लेके आते हैं, वो दूर लेके बैठ जाते हैं। उसके बाद मलकुल मौत आते हैं। मलकुल मौत आता है उस काफिर और मुनाफिक के पास, उसकी रूह कब्ज करने के लिए उसके सर के पास बैठता है फरिश्ता। मलकुल मौत काफिर आदमी के सर के पास बैठता है और कहता, अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा उखरुजी इला सखतिम मिनल्लाहि व गज़ब। अये बदबूदार खबीस रूह, तो निकल अल्लाह के गुस्से की तरफ और अल्लाह के आजाब की तरफ निकल। तू निकल अल्लाह के गुस्से की तरफ, अल्लाह की नाराजगी की तरफ तू निकल, तेरे लिए आदाब है। तो खुद से फरिश्ते उसकी रूह भी जल्दी से खत्म नहीं करते, कहते हैं खुद तुम अपनी रूह निकालो। कितनी तकलीफ होगी आदमी को, सोचिए। एक आदमी है जबरदस्ती मार के खींच के निकाल दिया, खत्म। एक आदमी खुद अपने आप को कत्ल करे, काटे पीटे, तो कितनी तकलीफ होती। तो फरिश्ते उसके सर के पास मलकुल मौत आके बैठेगा और कहेगा, ए बदबूदार खबीस रूह निकल तू अल्लाह के गजब की तरफ, अल्लाह की नाराजगी की तरफ। तो क्या है, उसके जिस्म में रूह इधर उधर भागेगी, इधर उधर रूह भागेगी। आखिरकार क्या होगा, फरिश्ता इतनी बेदर्दी के साथ, इतनी तकलीफ देकर उसकी रूह को निकालेगा, खींचेगा, जिस तरह भीगे हुए ऊन से आदमी तीली खींचता है। ऊन समझ रहे हैं ना, जिससे स्वेटर वगैरह बुनते हैं ठंडियों का। अब उससे भीगा हुआ हो, उसमें से तीली निकालना हो तो कितनी मुश्किल से निकलती। ऊन के एक एक जर्रे उसके साथ आते हैं पूरे। इतनी तकलीफ के साथ उसकी रूह निकाली जाएगी कि कोई बयान नहीं कर सकता। फरिश्ता, मलकुल मौत का फरिश्ता उसकी रूह को लेगा और अपने हाथ में एक लम्हा भी नहीं रखेगा। वो जो फरिश्ते आए थे सियाह चेहरे वाले, डरावनी शक्ल वाले, उन फरिश्तों को दे देगा, तो जहन्नम से वो जो टाट लेकर आए थे उसमें लपेट देंगे। लपेटते ही आसमान की तरफ उठेंगे, और जब उसकी रूह निकलेगी तो इतनी खबीस और खराब बदबू उससे फैल जाएगी दुनिया में। और जब आसमान में लेकर चढ़ेंगे, फरिश्तों को भी उस बदबू से तकलीफ होगी। फरिश्ते कहेंगे, कितनी बदबू है, किसकी लाश है ये। तो उसके जो सबसे बुरा नाम दुनिया में जिससे पुकारते थे, वो नाम जिक्र किया जाएगा, फला इब्ने फला की रूह। तो आसमान खोलने के लिए ये फरिश्ते कहेंगे, दरवाजा खोलिए आसमान का। फरिश्ते नहीं खोलेंगे, फरिश्ते उसके लिए आसमान का दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। फरिश्तों की जिस भी जमात के पास से गुजरेंगे, कहेंगे कि कितनी करीह और कितनी बदबूदार है इसकी रूह। फरिश्ते जब दरवाजा नहीं खोलेंगे, उसके बाद उसकी रूह को वहीं आसमान से ले जाकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा। आसमान की बुलंदियों पर जब दरवाजा उसके लिए आसमान का नहीं खुलेगा, वहीं से उसकी रूह को फेंक दिया जाएगा नीचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्नह, और न वो जन्नत में दाखिल होंगे। हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल क़ियात, यहाँ तक कि ऊंट क्या कहते हैं, सुई समझते हैं ना, जिससे कपड़ा वगैरह सिलते हैं, उसमें बारीक एक सुराख होता है जिसमें धागा डालते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो लोग जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ऊंट सुई के सुराख में से दाखिल ना हो जाए। तो ये मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं है कि सुई के सुराख में से ऊंट चला जाए। जिस तरह ये मुमकिन नहीं है, अल्लाह के नबी ने कहा इसी तरह उनके लिए भी जन्नत में जाना मुमकिन नहीं है। तो वहीं से उसकी रूह को फेंक दी जाती है। अल्लाह कहता है कि उसकी किताब को, उसके नामे अमाल को, उसकी रूह को जमीन के सबसे निचले दर्जे सिज्जीन में रख दो उसको।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने ये आयत पढ़ी, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समा, जो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला होता है गोया कि आसमान से गिर पड़ा हो, तख्तफुहु तैर औ तहवी बिहि रिह, उसकी रूह को, उसके जिस्म को परिंदे उचक ले जाएं, हवा इधर उधर उसको बिखेर दे, उड़ा के ले जाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। तो ये काफिर की रूह जब कब्ज की जाती है तो उसकी ये हालत होती है। लेकिन जब एक मोमिन की रूह कब्ज होती है, अल्लाह ने उसी आयत में, उसके बाद की आयत में क्या कहा, अल्लदीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना, नेक और मुत्तकी लोगों की रूह फरिश्ते कब्ज करने आते हैं, तो आते ही बशारत सुना देते हैं। क्या बशारत सुनाते हैं? सलामुन अलैकुम, सलाम करते हैं फरिश्ते बाकायदा। जब मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आते हैं तो बाकायदा सलाम करते हैं। और कैसे फरिश्ते आते हैं? हदीस के अंदर आता है कि जन्नत से एक सफेद कफन लेकर आते हैं, बेहतरीन खुशबू वाला, और सफेद चेहरे वाले खूबसूरत फरिश्ते आते हैं कि उनके चेहरे पर इतना नूर होता है कि सूरज की रोशनी उनके सामने फैल। ऐसे खूबसूरत रोशन चेहरे वाले फरिश्ते जन्नत से जन्नत का कफन लाते हैं, बेहतरीन खुशबू उसमें लगी होती है, हनूत, खुशबू का नाम है हनूत, वो खुशबू लगी होती है। वो आके दूर हद्दे निगाह फरिश्ते वो आके बैठ जाते हैं। मलकुल मौत जब फरिश्ता आता है तो उसके सर के पास बैठता है। वो फरिश्ता क्या कहता है? जब मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए आता है, वो फरिश्ता उससे कहता है कि ऐ पाक रूह, ऐ पाकीज़ा रूह, तू अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी खुशनूदी की तरफ निकल। अल्लाह की खुशनूदी तुझे हासिल है, तुझे अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल है, तू अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनूदी की तरफ निकल। हदीस के अंदर आता है, रूह जब मोमिन की निकलती है तो इतनी आसानी से निकलती है, जिस तरह एक गिलास है ना, उसमें लबालब पानी भरा हो, एकदम पूरा भरा हो, एकदम लबालब, तो एक कतरा जिस तरह से छलक जाता है ना आसानी से, इसी तरह आसानी के साथ मोमिन की रूह निकलती है। फरिश्ता उसको अपने हाथ में लेता है, मलकुल मौत, और अपने हाथ में जरा भी देर नहीं रखता, फौरन जो फरिश्ते दूर बैठे रहते हैं जन्नत से, जो कफन लेके आए रहते हैं खुशबू वाला, उनको देते हैं, फौरन उसमें रूह को लपेटते हैं। और हदीस के अंदर आता है कि इतनी बेहतरीन खुशबू, मुश्के अंबर से भी ज्यादा बेहतरीन खुशबू उससे फूटती है, उसकी रूह से। वो जब लेके जा रहे होते हैं, आसमान पर चढ़ रहे होते हैं फरिश्ते, जो जन्नत से कफन लेके आए थे, लपेट के जा रहे होते हैं, फरिश्तों की जिस भी जमात के पास से गुजरते हैं तो आशाश करते हैं कि कितनी पाकीज़ा खुशबू है, ये किसकी रूह है? तो कहते हैं फला इब्ने फला की है। उसके सबसे बेहतरीन नामों के साथ पुकारते हैं, यहां तक कि पहले आसमान के पास पहुंचते हैं, आसमान दुनिया पर। तो फरिश्ते कहते हैं दरवाजा खोलो, तो फरिश्ते दरवाजा खोल देते हैं। जिस भी आसमान के फरिश्तों के पास से गुजरते हैं, सब उसको मुबारकबादी देते हैं, सब मुबारकबादी देते हैं, यहां तक कि 7वें आसमान तक वो फरिश्ते रूह को लेकर पहुंचते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, उक्तुबू किताब अब्दी फी इल्लियीन, मेरे बंदे की रूह को इल्लियीन में रख दो। उसके बाद लंबी हदीस है, फिर जन्नत में उसको कब्र में दफनाया जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नती लिबास पहना दिया जाता है, और जन्नत की खुशबू आती रहती है, वो सारी तफसील। तो इसमें रूह जो कब्ज की जाती है, देखिए कितना हदीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना, तो पाकीज़ा रूहें होती हैं इनकी। फरिश्ते आते ही कहते हैं सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, खुश हो जाओ तुम लोग, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार कर रखी है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार, दुनिया ही में खुशखबरी देते हैं, दुनिया ही में खुश, रूह निकालने से पहले ही उसको खुशखबरी सुना देते हैं। और जब वो मोमिन बंदा इस कदर खुश हो जाता है, वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो मेरी रूह कब्ज करें, जब अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है, बख्श दिया है, मुझे जन्नत में जाना है, तो उसको और शौक बढ़ जाएगा,
और शौक बढ़ेगा, निकालो भाई, जल्दी से निकालो रूह, जन्नत में पहुंचे जल्दी से हमारी रूह, हमेशा के लिए आराम पा जाए। तो ये मोमिन की रूह इस तरह आसानी के साथ निकलती है, और काफिर की रूह बड़ी बदतरीन सूरत में निकालते हैं फरिश्ते, बड़ी तकलीफ दे करके, मार मार के, पीट पीट के, खींच खींच के इस तरह निकालते हैं, बड़ी तकलीफ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता हर काफिर की तो रूह बहुत मुश्किल से निकलती है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत तकलीफ के साथ, बहुत अजाब देकर फरिश्ते निकालते हैं। लेकिन अगर किसी मोमिन को इंतकाल के वक्त कोई परेशानी लाहिक हो, रूह कब्ज होते वक्त, तो इसका मतलब नहीं कि वो खराब आदमी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रूह कब्ज हुई तो आप कितनी तकलीफ में थे, कितने दर्द में थे, कितनी परेशानी में थे आप, कि आप अपने हाथ भी नहीं उठा सकते थे, अपने हाथ अपने चेहरे पर फेर भी नहीं सकते थे। आयशा कहती हैं कि मैं पहले उन लोगों को बुरा समझती थी जिनको मौत के वक्त तकलीफ होती थी, लेकिन जब नबी की तकलीफ मैंने देखी आखिरी हालत में, तो अब मैं किसी को बुरा नहीं समझती। तो मौत के वक्त अगर किसी हकीकत में कोई मुसलमान बंदा था, मोमिन बंदा था, मुआहिद बंदा था, नेक बंदा था, उसको अगर तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब नहीं कि वो बुरी मौत है, नहीं, अल्लाह उसकी वजह से उसके दर्जात बुलंद करेगा, उसके गुनाह माफ करेगा, उसके गुनाह माफ करेगा उस तकलीफ की वजह से। लेकिन हकीकत में उसके लिए हमेशा हमेश के लिए सलामती की और जन्नत का ठिकाना होगा। तो ये दोनों के दरमियान मुआजना अल्लाह ने किया है कि काफिर की रूह ऐसे निकलती है और मोमिन की रूह ऐसे निकलती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी आसानी के साथ आसानी के साथ और हुस्ने खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह नेक काम करते हुए अच्छी हालत में हमारी हमारी वफात हो। अल्लाह हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए और अदाब जहन्नम से, अदाब कब्र से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह बुरे खात्मे से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।